नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम से मैं हूं सोनल भारद्वाज। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमएसयू की लॉ फैकल्टी में फिर से ली गई छात्र की प्रवेश प्रक्रिया, प्रबंधन के संदिग्ध रवैये से उठे सवाल। धुआंधार बारिश से रेल सेवा बाधित, वडोदरा रेलवे स्टेशन पर फंसे हजारों यात्री। और वेमाली में सीवरेज का पानी विश्वामित्री में बहाने का गोरख धंधा, बिल्डरों और बूढ़ा अधिकारियों की मिलीभगत। एमएस यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी के छात्र को फिर से एंट्रेंस एग्जाम दिलवाए जाने पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। एमएस यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में एलएलबी के लिए प्रवेश प्रक्रिया ली जाती है, जो इस वर्ष 20 जून को ली गई थी। लेकिन लॉ फैकल्टी के एक छात्र जयराज राठौड़ की प्रवेश परीक्षा प्रबंधन द्वारा आज फिर से ली गई। इस मामले प्रबंधन से सवाल पूछने पर किसी ने भी जवाब देने से इनकार कर दिया, जिससे छात्र की प्रवेश प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई। सर, आज एग्जाम लीधी છે, એક છોકરાને બેસાડીને ફરીવાર એક્ઝામ લીધી છે, લો ફેકલ્ટીની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ, એની માટે શું કહેવું છે? અને સ્પેશિયલ વિદ્યાર્થીને વીસી સાહેબની ઓફિસમાં બેસાડ્યો છે, તેની માટે શું કહેશો? સર, કોઈ તો આન્સર આપશો કે નહીં? ઓજા સાહેબ, સર કોઈ આન્સર? નો કમેન્ટ્સ. એટલે સર ભૂલ છે યુનિવર્સિટીની? નો કમેન્ટ્સ. કઈ બફાયું છે યુનિવર્સિટી? નો કમેન્ટ્સ. આઈ ટોલ્ડ યુ ના. સર, આવી રીતે વાત ના થાય તમારાથી સર. અમે તમને કોઈ ક્વેશ્ચન જ કરીએ છીએ જે અમારી પાસે માહિતી આવી છે. તમે એક વિદ્યાર્થીને નો કમેન્ટ્સ. એક વિદ્યાર્થીને તમે નો કમેન્ટ્સ. નો કમેન્ટ્સ. પર્સનલ કેમ એને એક્ઝામ અપાઈ? નો કમેન્ટ્સ. નો કમેન્ટ્સ. આઈ ટોલ્ડ યુ. પણ કેમ નો કોમેન્ટ સર? એલએલબીની ઇન્ટ્રન્સ એક્ઝામ હતી જે 20 તારીખે મેં આપી હતી 3 થી 6 માં. આજે તમે કેમ યુનિવર્સિટીમાં આવ્યા? મને કોલ આવ્યો હતો મેડમનો કે આ રીતના 12 વાગે કે તમારે એક્ઝામ કાલે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે આવવાનું છે, તો એ રીતના મને બોલાયો હતો. તો આજે હું આવ્યો તો મને પૂછપરછ કરી પહેલાં તો કે શું છે ને કઈથી છે, તમે શું ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે એ બધું. એના પછી મારી એક્ઝામ લેવા માટે કીધું. તમને કોઈ ફોન પર કોઈ એવી ચર્ચા કરેલી કે આજે તમારી એક્ઝામ ફરી લેવાની છે કંઈ? ના, એવું કશું નહોતું મને કીધું. ડોક્યુમેન્ટ ખાલી ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે. એક્ઝામ લીધા પછી તમે પૂછ્યું રજિસ્ટ્રારને કે મેડમને કે કેમ એક્ઝામ લીધી છે, તો શું જવાબ આપ્યો? ના, એવું મેડમ એ લોકો કંઈ હતા નહીં. જે બી વાત થઈ પછી રાકેશ જોડે થઈ હતી. ઓકે, એક્ઝામનું રિઝલ્ટ ક્યારે છે? કાલે 2 તારીખ. 2 તારીખે. અને આજે ફરીવાર તમારી આજે ફરીવાર એક્ઝામ લેવાય છે. શું કહેતા હતા એ લોકો અંદર? તમને કેવી વ્યવસ્થા કેવી આપી? કયા રૂમમાં બેસાડેલા? જે પ્રોવિસીના રૂમમાં મને બેસાડ્યો હતો, એની અંદર મને કોફી આપી હતી, પાણી આપ્યું હતું અને બધી ફૂલ એસી કરીને મને સવલતોને બેહાડ્યો હતો. इस मामले कॉमर्स फैकल्टी के एफजीएस राकेश पंजाबी द्वारा प्रबंधन से मामले की सफाई मांगी गई, लेकिन इंचार्ज रजिस्ट्रार से लेकर वीसी तक सभी इस मामले से अनजान होने की बात कहते हुए मामले से बचते नजर आए, जिसके चलते राकेश पंजाबी और उनके समर्थकों ने इंचार्ज वीसी की गाड़ी के आगे लेटकर जवाब नहीं मिलने तक उन्हें वहां से नहीं जाने देने की बात कही। जवाब नहीं देने पर मौके पर घर्षण देखा गया। एमएस यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा मीडिया कर्मियों को भी मामले का कवरेज करने से रोका गया। તમારી નીચે જે છે તમારી બંધ કરાવો આ બધું. મેં તમને આટલું કોઓપરેશન કરું છું. સર, મેં તો તમને તો આપણે શું પે કરે છે આ લોકો? તમે કીધું ઉતારતો તો બહાર પણ જતા રહ્યા. ચાલો એમને આ શું કરવા ઉતારે છે આ લોકો? બંધ કરો ભાઈ. બંધ કર. તમારા અધ્યક્ષતામાં લેવાઈ હતી. આજે ઇન્ચાર્જ તમે જ હતા. લો ફેકલ્ટીમાં 20 જૂને એક્ઝામ લેવામાં આવી હતી, જે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ દર વર્ષે લેવાય છે. આ વર્ષે પણ હજારો વિદ્યાર્થીઓ એક્ઝામ આપે છે અને બધા પોતપોતાના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે અહીંયા લો ફેકલ્ટીમાં ભણવા આવતા હોય છે. તે જ રીતે એક વિદ્યાર્થી અહીંયા એક્ઝામ આપી હતી, ગર્લ્સ બિલ્ડિંગ પર એનું સેન્ટર હતું, એની પાસે હોલ ટિકિટ છે, એને એક્ઝામ આપી હતી, બધો પ્રૂફ છે, પેપર પણ છે. આજે કાલે એને ફોન કરવામાં આવ્યો યુનિવર્સિટી દ્વારા. અંજલિ મેડમ નામક કોઈ છે હોમ સાયન્સના ટીચર, એને ફોન કર્યો કે આવી રીતે તમારા ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન છે, તમે અહીંયા આવો અને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કરાવીને જાઓ. જ્યારે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કરવા આવે છે ત્યારે રજિસ્ટ્રાર એમની પૂછપરછ કરે છે. પછી પ્રો વીસીની ઓફિસમાં બેસીને એની એક્ઝામ ફરી લેવામાં આવે છે, સેમ પેપર આપવામાં આવે છે, સેમ બુકલેટ નંબર બધું સેમ જ હોય છે. અને જ્યારે ફરી આ એક્ઝામ લઈને બહાર છોકરો નીકળે છે અને પ્રશ્ન થાય છે કે આ એક્ઝામ મારી બીજી વાર કેમ લીધી. જ્યારે અમે લોકો રજિસ્ટ્રાર સર પાસે ગયા,
ડીન પાસે ગયા લો ફેકલ્ટીના અને જે ડિરેક્ટર હતા જે એક્ઝામ લઈ રહ્યા છે અંજલિ મેડમ એમની પાસે ગયા. આ ત્રણ વ્યક્તિએ કોઈ જવાબ ના આપતા એવું કીધું કે અમને આ વિષયની ખબર નથી અને રજિસ્ટ્રાર સર એક પણ વસ્તુ બોલ્યા વગર એમની ઓફિસમાંથી નીકળી ગયા છે. વીસી સર હાજર નથી, જે ઇન્ચાર્જ વીસી છે એમને વીસી સર છે એમને કશી ખબર નથી. એટલે યુનિવર્સિટી રામ ભરોસે ચાલી રહી છે, વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય ખતરામાં છે. યુનિવર્સિટી જવાબદારી લેવા તૈયાર નથી. એવા કોઈ વ્યક્તિ જવાબદાર અહીંયા બેઠો નથી કે જે આ વિદ્યાર્થીનું જે રિઝલ્ટ છે એ પણ કાલે કયું આવશે એ પણ જવાબદારી નથી લેતા. આ દિન સુધી કદાચ એવું ક્યારે બન્યું નહીં જ હોય. મારા ધ્યાનમાં 5 વર્ષથી છે, 5 વર્ષથી ક્યારેય આ બન્યું નથી અને ક્યાંક ને ક્યાંક આની પાછળ કંઈક ને કંઈક લોચો છે. એટલે કદાચ આ રીતે બીજી વાર એક્ઝામ લેવામાં આવી રહી છે. એ છોકરાને કોઈ જ જાણ નથી કે એની એક્ઝામ કેમ લીધી છે. યુનિવર્સિટીનો નથી અને બીકોમ બહારથી કર્યું છે એટલે એને યુનિવર્સિટીથી પરિચિત જ નથી. એટલે કદાચ એની જોડે આવી રીતે આવીને એ લોકો એક્ઝામ આપી છે. અને બહુ મોટી વાત તો એવી કહેવામાં આવે કે એ લોકો હમણાં પણ છાતી ઠોકીને એવું કહે છે કે હા અમે એક્ઝામ લીધી છે પણ કેમ લીધી એમને નથી ખબર. મીડિયા જોડે બી બદસલુકી કરી છે રજિસ્ટ્રાર સાહેબે કે એમને બહાર કાઢો તો કહીશ. કંઈક એવું લાગે છે કે આમાં કંઈ ઇન્વોલ્વમેન્ટ કંઈ મોટું જશે. બહુ મોટું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે આમાં. એ લોકો પાસે કાં તો OMR સીટ નથી કાં તો પછી એમણે બીજો કોઈ ગોટાળો કર્યો છે. કદાચ એટલા માટે જે ગોટાળાને લીધે જ મીડિયા સામે એ લોકો બોલવા તૈયાર નથી. આજે યુનિવર્સિટીની સૌથી મોટી 2 પોસ્ટ હોય, વીસી અને રજિસ્ટ્રાર, એ 2 વ્યક્તિ આજે મૌન હોય એટલે બહુ મોટી વાત કહેવાય કે એ વ્યક્તિ મૌન કેમ છે. કદાચ કંઈક હશે એટલા માટે જે વ્યક્તિ મૌન છે. અને જે મીડિયા સાથેનો વ્યવહાર છે એ તદ્દન ખોટો છે. અમને પણ કહી રહ્યા છે અને એમને પણ કીધું છે કે મીડિયા સામે અમે કશું નહીં બોલીએ. એટલે જો યુનિવર્સિટી જવાબદારી લેતી ના હોય, મીડિયા સમક્ષ એ ના કહી શકતી હોય એટલે આનાથી ખરાબ વાત MS યુનિवर्सिटी માટે કોઈ ના કહેવાય. आज का अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस. खबरें अभी और भी है जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे लेकिन छोटे से अंतराल के बाद. टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, खुद को लिफ्ट करना पड़ता है. रैकेट लेकर नहीं पैदा होता कोई, ना मैं कोई सुपर हीरो. हर एक दिन खिसाया है मैंने खुद को. टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, खुद को लिफ्ट करना पड़ता है. खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत हर किसी में होती है और ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी में हम आपको आपकी ताकत का एहसास कराते हैं. मुंबई में भारी बारिश के चलते रेल सेवा बाधित हुई जिससे वडोदरा रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान हुए. गुजरात और मुंबई में भारी बारिश के चलते जगह जगह जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है और पानी वेस्टर्न रेलवे के ट्रैक पर भी भर गया है जिसके चलते रेल सेवा फिलहाल बाधित है. मुंबई की ओर आवाजाही करने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही है और कई ट्रेनें रद्द भी कर दी गई है, जिस पर जानकारी दी जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने. मुंबई में क्या है कि जो पालघर जगह है उसमें काफ़ी बारिश हुई है कल रात से. इसकी वजह से क्या है, ये जो बॉम्बे और सूरत का जो ट्रैक है, जो ट्रेन का मूवमेंट है वो डिस्टर्बेंस हुआ है. इसमें तकरीबन 10 ट्रेनें कैंसिल की गई है मुंबई और सूरत के बीच में और तकरीबन आधा दर्जन ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है. हमारा जो इम्पैक्ट है वो जो बॉम्बे से आने वाली 3-4 ट्रेनें हैं उनको 1 घंटे लेट किया गया है और जो यहाँ से बड़ोदरा से जाने वाली ट्रेनों को कोई इम्पैक्ट नहीं है. मेजर क्या है कि वो जो 3 ट्रेनें हैं हमारी 3-4 ट्रेनें जो कि बॉम्बे से आती है उसमें पोरबंदर, जनता, वैष्णो देवी और शताब्दी एक्सप्रेस, वो ट्रेनों को 1 घंटे से ज़्यादा लेट किया गया. देखिए हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट तो है नहीं, फिर भी हम लोगों ने ऑलरेडी इंक्वायरी और हेल्प डेस्क पे सारी चीज़ें पहले से प्रिकॉशंस ले रखे हैं. सपोज अगर ट्रेन बरोबर हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं और ये जो ट्रेन डिस्टर्ब हुई है तो क्योंकि पैसेंजर सभी जगह के होते हैं तो उनका अनाउंसमेंट बरोबर हम लोग कर रहे हैं स्टेशन में. रेल सेवा बाधित होने से हजारों रेल यात्री वडोदरा रेलवे स्टेशन पर फंस गए. उनमें से कुछ रोजाना आवाजाही करने वाले नौकरी पेशा लोग भी थे जिन्हें अपने अपने काम पर पहुंचने में परेशानी आई. मामले से रेलवे प्रबंधन को अवगत कराए जाने पर यात्रियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया. आखिरकार मीडिया के पहुंचने के बाद और रेलवे प्रबंधन से सवाल पूछे जाने के बाद सभी यात्रियों को स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों में बिठाकर रवाना करवाया गया. अंकलेश्वर तक जाना है, आप सही से जवाब नहीं दे रहे हो. परमिशन नहीं है. अपन सर अभी तो इनको सामने तो मीना सर ने बोला है सूरत तक गाड़ी जाएगी, ऐसा मीना सर ने बोला है सर. परमिशन नहीं है. तो आप बता रहे हो कि जवाब देने के लिए मेरे को परमिशन नहीं, परमिशन मिलेगा फिर मैं आपको जवाब दूंगा. लेकिन अभी ये स्टेशन पे हम किसको बोल सकता है? चलो
अभी ऐसे तो हम बता सकते हो ना सर कि कहाँ तक गाड़ियाँ चल रही है, कहाँ से बंद है, वो तो बताइए मेरे को। मेरे को कोई भी आपको जवाब देने के लिए परमिशन नहीं है। परमिशन मिलते ही मैं आपको जवाब दे दूँगा। पैसा आपको अगर रिफंड लेना है तो काउंटर नंबर 3 पे सर मेरे को खाली जवाब नहीं दे सकते, पर पैसेंजर को तो जवाब दे सकते हो ना सही से, है सर? आप ही ऐसे करते हो पैसेंजर के पास। यहाँ पे बैठा हूँ ट्रेन के इंतजार में और अभी तक ट्रेन का कोई अता पता नहीं। आनंद तक गाड़ी आने के बाद वहाँ से कैंसिल हो जाता है और वहाँ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अब मैं कैसे जाऊँगा सूरत तक? मेरे साथ मेरी फैमिली पड़ी हुई है और ये बरसात का मौसम है। आप देखो कोई देर में अंधेरा हो जाएगा, उसमें कहाँ जाएंगे? देखिए ऐसा है, मैं 11:30 बजे यहाँ पहुँच गया था बड़ौदा स्टेशन और मैं रहता हूँ तादनजा में। वहाँ से आने में थोड़ा वक्त लगता है, 11:30 बजे मैं पहुँच गया और यहाँ आने के बाद भी मुझे अब तक ठीक लग रहा था। 12:30 बजे तक मुझे ऐसा लगा ट्रेन आ जाएगी। 12:30 बजे बाद भी कोई अनाउंसमेंट नहीं। 1 बजे वो अनाउंस करते हैं कि ट्रेन कैंसिल हो गई। अब सोचिए 12:30 बजे का ट्रेन है और वो 1 बजे अनाउंस करते हैं कि ट्रेन कैंसिल हो गई। हम कहाँ जाएंगे? हमारे साथ हमारी फैमिली है, हम अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? कौन जवाब देगा? बस एक अनाउंसमेंट कर दिया, हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म। ये देखिए अभी लगभग 1:30 बज गया और अभी अंत आया। अभी उन्होंने बताया कोई ओखा एक्सप्रेस है जो वो ट्रेन में हमें अलाउड कर रहे हैं, बट वो जो हमारी रिजर्वेशन थी उस पर तो नहीं, हम खड़े खड़े जाना पड़ेगा। हम इधर 12:30 बजे से खड़े हैं और जामनगर सूरत इंटरसिटी के लिए। अभी इंटरसिटी का 12:43 का टाइम है, तो 12:43 से 1 बजे वो लोग अनाउंस करता है कि ये गाड़ी कैंसिल किया है। तो अभी एक टाइम पे गाड़ी कैंसिल किया ऐसे अनाउंस करेगा तो हम कहाँ जाएगा? हाँ, उसके पहले 2 घंटे के पहले वो अनाउंस करता भाई ये गाड़ी कैंसिल किया तो बाय रोड भी हम नौकरी जा सकता था। और उसके पहले सिकंदराबाद था, उसमें भी हम इधर रजूआत करके कुछ टिकट लेके भी जा सकता था। अभी रेलवे वाला का हर बार ऐसा है कि टाइम पे अनाउंस करता है कि गाड़ी कैंसिल है। स्टेशन मास्टर तो हाथ ऊंचा कर दिया। अभी हमारा वो गाड़ी तो सिकंदराबाद भी चला गया, ये इंटरसिटी कैंसिल किया। अभी ये 3 बजे है, अभी हमारा नौकरी का टाइम 3 बजे का है, अभी हम पहुँच भी नहीं पाएगा। आज ये मीडिया वाला आया, इसके लिए ओखा एर्नाकुलम में वो पैसेंजर लोगों को अलाउ किया, नहीं तो वो भी नहीं कर सकता था। नहीं, पहले तो हमें ऐसा ही बता दिया कि इंक्वायरी वाले ने बता दिया कैंसिल तो कैंसिल। अभी ये कोई जवाब नहीं रहता है सर। अभी ठीक हमने बाहर आपको देखा और आपको लेके गए तभी वो लोगों ने सही जवाब दिया है। तो हमारा तो कोई नागरिकता है ही नहीं। क्या व्यवस्था क्या की गई है? व्यवस्था तो अभी ये पैसेंजर का किया है। वो आधा पैसेंजर तो कैंसिल करके निकल गए। वो पहले ही उनको जिम्मेदारी से करना चाहिए ना कि कैंसिल किया है तो आप वेट करके दूसरी गाड़ी में जा सकते हो, जो इनका जिम्मेदारी बनता है। कुछ कोई नहीं सुनता, आम आदमी का सुनते ही नहीं है ज़्यादा। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. वेमाली में बिल्डरों और वुडा अधिकारियों की मिलीभगत से सीवरेज का पानी सीधा विश्वामित्री में बहा दिया जाता है। वेमाली गांव के बिल्डरों द्वारा कई इमारतें बनाई गई है, लेकिन यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का अभाव है। गटर के अभाव में इमारतों का गंदा पानी सीवरेज में एकत्रित किया जाता है। सीवरेज का यह पानी सीधा विश्वामित्री में छोड़ दिए जाने का गोरख धंधा बिल्डरों द्वारा चलाया जा रहा है। वेमाली गांव के लोगों को सालों के बाद भी ड्रेनेज लाइन की सुविधा नहीं मिली है। वहीं अधिकारियों की रहम नज़र के तले बिल्डरों ने सीवरेज की लाइन विश्वामित्री नदी में जोड़ दी है। यहाँ 4.5 करोड़ की लागत से दूषित पानी के शुद्धिकरण के लिए STP प्लांट बनाया गया है, जो कई साल बीत जाने के बाद भी कार्यरत नहीं है। STP प्लांट कार्यरत नहीं होने के बावजूद वुडा अधिकारियों द्वारा गटर लाइन STP प्लांट में अवैध रूप से जोड़ दी गई है। ग्राम पंचायत और वुडा में बार बार शिकायतों के बावजूद लोगों की समस्या सुलझ नहीं रही है, जिससे यहाँ के लोग परेशान हैं। અમારે ગામમાં ખાડ કૂવા બનાવી ડ્રેનેજ નાખેલી છે ઉડાએ, પણ અત્યાર સુધી લગભગ 2-3 વર્ષથી આ સોલ્યુશન હજુ
પ્રોબ્લેમ જે છે એ સોલ્વ થતો નથી. આ લોકો ખાડકુવા લોકોએ પ્રાઇવેટ બનાવેલા છે આ ફ્લેટોવાળાએ, એ લોકોના ઉભરાવાથી ઘણીવાર તકલીફ એવી પડે છે કે પાણી રોડ પર આવી જાય છે ખાડકુવાનું. અમે 2-3 વાર નોટિસો આ લોકોને આપેલી છે ઉડાવાળા તરફથી અને અમારા પંચાયત તરફથી. ઉડાવાળાએ કંઈ અત્યાર સુધી એનું સોલ્યુશન લીધું નથી. એ લોકો ટેન્કર મોકલતા ખાલી કાઢવા માટે કે નથી આ ડ્રેનેજ સાફ કરવા માટે મશીન મોકલતા. રોડ જે છે એ લોકોનો બનાવેલો અત્યાર સુધી 3 વાર લેખિતમાં આપી છે અરજી અમે ઓછી અમારી પંચાયત પાસે છે, છતાં પણ એ રોડ અત્યારે આ જ પોઝિશનમાં છે. એને લોકો પૈસા ફળવાઈ ગયા છે, કોન્ટ્રાક્ટરના પૈસા બી મળી ગયેલા છે 3 વર્ષ પહેલાં, છતાં પણ એ રોડ એને પોઝિશનમાં અત્યારે જે પોઝિશન દેખાય છે એ પોઝિશન છે. વારંવાર ગટરનું પાણી નીકળે છે, દર ઉનાળામાં નીકળે, ચોમાસામાં નીકળે. પાણી પીવાના લાયક લાઈનો છે, ઘણીવાર એટલે લાઈનમાં ઉતરે છે. અમારે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ આ કામ પૂરી તાકેદારીથી એ લોકો કરી શકતા નથી. બિલ્ડરમાં આ લોકોએ ઉડાવાળાએ લાઈન નાખી એટલે બિલ્ડર કોઈ પરમિશન કોઈ પંચાયતીને બી ઉડાવાળાને અમે લેખિતમાં રજૂઆત આપી. ઉડાવાળાએ એવું કીધું કે અમે કોઈને પરમિશન આપી નથી, એ લોકોએ પોતપોતાની મેળે નાખી દીધેલું છે. મિલી ભગતથી આ કામ થયેલું છે એવું લાગે છે. છતાં પણ અમે કીધું ગમે તે હોય તમે એનું સોલ્યુશન લાઈન તમે એનું ડ્રેનેજ જે કંઈ છે ચાલુ કરવાની છે તે સાફ સફાઈ કરો. પમ્પિંગ સ્ટેશન લગભગ 1 વર્ષથી તૈયાર થઈ ગયું છે. દર 2-3 વાર લેખિત અરજી આપી છે. ઓછી અમારી એની પણ છે પમ્પિંગ સ્ટેશનની, એ પણ અત્યારે એ લોકોએ લગભગ માર્ચમાં ચાલુ કરવાનું હતું પણ માર્ચમાં અત્યાર સુધી ચાલુ કર્યું નથી. અને અત્યારે એની જ પોઝિશન અત્યારે ગંદકી ગામમાં જ છે. ગામની લાઈન અમારા પંચાયતની જે કંઈ ગટર લાઈન છે જે છે એ ઉડાની લાઈનમાં બિલકુલ કોઈ જગ્યાએ લાઈન તે અમે જોઈન કરેલી નથી. ગામનું બધું જે કંઈ છે અમારા તળાવમાં જ છે અને આ ખાલી ઉડાના ફ્લેટ પૂરતું જ પાણી આ બધું ગંદકીનું નીકળે છે. જે લાઈન નાખી છે એમાંથી જે જેટલા ફ્લેટોવાળાએ નાખી છે એ બધું ગંદકીનું પાણી જે ગટર ડ્રેનેજનું એ બધું જે આ ફ્લેટોનું જ જાય છે, એ નદીમાં જ જાય છે. તો એ પરમિશન લીધેલી છે? કોઈ પરમિશન લીધેલી નથી, ડાયરેક્ટ જ એમને જોઈન કરી તોડીને નાખી દીધેલું છે. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. GIHM Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना. यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट. गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ अकोटा वडोदरा. आरवी देसाई रोड पर गंगोत्री निकट ड्रेनेज का स्लैब बैठ जाने से कई फीट गहरा गड्ढा हो गया है. वडोदरा शहर में हो रही बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति पेश आ रही है. कुछ घंटों की बारिश में ही शहर के कई इलाके पानी में डूब जाते हैं. सुभानपुरा, गोरवा, समा, आजवा रोड, अलकापुरी, गरनाला, पानीगेट जैसे कई इलाकों में पानी भरने की समस्या देखी जाती है. इसी बीच एक खबर आई, वी देसाई रोड पर गंगोत्री अपार्टमेंट निकट मुख्य मार्ग पर ड्रेनेज का स्लैब टूट गया. स्लैब टूटने से वाहन चालकों को गड्ढे में गिरने की दहशत रही. 15 फीट बड़े इस गड्ढे की जानकारी मिलने पर वडोदरा महानगर पालिका ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत शुरू की. शहर में मराठी समाज द्वारा मराठी स्कूल को चालू रखने की मांग जिला शिक्षा अधिकारी से की गई. सर सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी वडोदरा में बसने वाले मराठी समाज के विभिन्न संगठनों ने बंद होने की कगार पर खड़ी सयाजीगंज मराठी प्राथमिक स्कूल मुद्दे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन दिया. अखिल महाराष्ट्र युवक मंडल, श्री संत सेनाजी नाई सेवा समाज मंडल, श्री रत्नागिरी जिला मराठी मंडल बरोड़ा, विठ्ठल रखुभाई चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री रायगढ़ जिला मराठी संगठन और महाड पोलादपुर तालुका मराठा समाज द्वारा आवेदन देकर मराठी स्कूल चालू रखने की मांग की गई. साथ ही सयाजीगंज की माधवराव गोलवलकर मराठी प्राथमिक स्कूल को 8वीं कक्षा से बढ़ाकर 12वीं कक्षा तक की करने की मांग भी की गई. आज रोज समस्त महाराष्ट्रीयन समाज એટલે કે વિઠ્ઠલ રખુભાઈ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, અખિલ મહારાષ્ટ્ર યુવક સંગઠન, શ્રી મહાડ પોલાદપુર તાલુકા મરાઠા સમાજ, શ્રી રાયગઢ જિલ્લા મરાઠી સમાજ, રત્નાગીરી મરાઠી સમાજ અને નાઈક મરાઠી સમાજ દ્વારા જિલ્લા અધિકારીશ્રીને એક આવેદનપત્ર સુપ્રત કરવા આવ્યા છે. જેનું કારણ પરમ પૂજ્ય માધવરાવ ગોળવલકર પ્રાથમિક શાળા નંબર 3 મરાઠી પ્રાથમિક શાળા નંબર 3 જે અત્યારે જાણવા મળ્યા મુજબ એ સ્કૂલ સરકારશ્રી બંધ કરવાની તાકીદમાં છે. જ્યારે વડોદરા શહેરની અંદર જો વાત કરીએ તો મહાકાલીનગર, જય ભવાનીનગર, ઝુલતા પુલ, પરશુરામ ભટ્ટા,
નટા ટાઉનશીપ જેવા વિસ્તારની અંદર હજારોની સંખ્યામાં મહારાષ્ટ્રીયન લોકો રહે છે. એક વાત એ છે કે આ જે સ્કૂલમાં ભરતી નથી થતું એનું કારણ કે આ સ્કૂલ ફક્ત ને ફક્ત ધોરણ 1 થી લઈને 8મા સુધી છે અને 9 થી 12મા સુધીના અહીંયા ક્લાસ ન હોવાથી મહારાષ્ટ્રીયન લોકો એમના વાલીઓ બાળકોને સ્કૂલમાં ભરતી કરતા નથી. આજે સરકારશ્રીને અમારી એક જ વિનંતી છે કે સમસ્ત વડોદરા શહેરની અંદર માત્ર ને માત્ર આ એક જ સ્કૂલ મરાઠી છે અને ખૂબ મોટી લાખોની સંખ્યામાં મહારાષ્ટ્રીયન લોકો રહેતા હોય તો સરકારશ્રીએ એ વાત પર ધ્યાન આપીને આ સ્કૂલને ધોરણ 1 થી 12મા સુધી કરવાની એક વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. સાથે સાથે આપના દ્વારા હું માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને જણાવવા માગું છું કે જ્યારે તમે મનની વાત કરતા હો તો એ મનની વાતમાં તમે આ પણ એક વિષય લો કે અત્યારે સમસ્ત વડોદરા શહેરમાં જે પ્રાથમિક સરકારી પ્રાથમિક સ્કૂલો છે બંધ પરિસ્થિતિમાં છે. એટલે તમે એવું કંઈક વાત કરો કે જેથી કરીને આ સ્કૂલોની અંદર વાલીઓ બાળકોને ભણાવે એટલી જ અમને એક વિનંતી કરવામાં આવે. આજે અમે આવેદનપત્ર આપ્યા પછી જોઈએ હવે સરકારશ્રી શું એક પ્રવૃત્તિ કરે છે, નહીં તો પછી हमारू स्कूल पर हमारू आंदोलन रहे. शहर में तेज रफ्तार गाड़ी चलाना अब वाहन चालकों को महंगा पड़ सकता है. ट्रैफिक विभाग ने तेज रफ्तार वाहन चालकों पर लगाम कसने के लिए विशेष मुहिम शुरू की है. शहर में होने वाले सड़क हादसे रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस विभाग ने एक नई मुहिम शुरू की है. मुहिम अंतर्गत शहर की सड़कों पर चलने वाले वाहनों की गति पर स्पीड गन के जरिए ट्रैफिक विभाग द्वारा निगरानी रखी जाएगी. नेशनल हाईवे पर सभी तरह के वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल पाएंगे, लेकिन शहरी इलाकों में ये स्पीड स्कूटर और अन्य वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है. यानी स्मार्ट सिटी के स्मार्ट वाहन चालकों को हेलमेट के साथ साथ अब वाहन की गति मर्यादा का भी ध्यान रखना होगा. पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के मार्गदर्शन में ट्रैफिक विभाग की एसीपी अमिता वानानी ने शहर के विभिन्न इलाकों में स्पीड गन के जरिए वाहन चालकों की गति को नापा. तेज रफ्तार चलने वाली गाड़ियों को ट्रैफिक विभाग द्वारा मेमो देकर दंडित भी किया जाएगा. वडोदरा शहर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा माननीय सीपी सर, जेसीपी सर और डीसीपी सर के गाइडेंस के अंडर में एक पूरी स्क्वाड बनाई गई है, जिसमें एक पीएसआई और 7 पुलिस कर्मचारी रहेंगे. जो भी वाहन चालक ओवर स्पीडिंग में अपने व्हीकल चलाते हैं, जैसे सिटी में जो नोटिफिकेशन है उसमें 40 किलोमीटर से ऊपर आप स्पीड में नहीं चला सकते, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पूरी टीम कार्यरत रहेगी. और ये टीम जो है सिटी के अलग अलग एरिया में जाके जो भी व्हीकल ड्राइवर्स अपने व्हीकल्स 40 किलोमीटर से ऊपर चला रहे हैं उनके विरुद्ध उनकी फ़ोटोग्राफ्स कितनी स्पीड लिमिट में चला रहे हैं उसका एक ई चलन ऑन द स्पॉट ही जनरेट होगा. और जनरेट होने के बाद उनको 400 रुपीज़ का दंड वसूल किया जाएगा. साथ ही साथ बड़ौदा सिटी में 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और हैवी व्हीकल्स भी इसमें शामिल होंगे और जो भी ज़्यादा स्पीड से चला रहे हैं व्हीकल्स उनके खिलाफ ये कार्यवाही की जाएगी. मैसेज में ये कहना चाहूँगी खास करके यंगस्टर्स लोगों के लिए कि जो मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं, तो अपना व्हीकल जो है 40 किलोमीटर से ज़्यादा सिटी में ना चलाएं ताकि उनकी जान भी सुरक्षित रहे, उनके परिवार की सुरक्षा भी हो सके और साथ में जो रोड पर अन्य जो व्हीकल ड्राइवर्स हैं उनको भी सेफ्टी दी जा सके. एमएस यूनिवर्सिटी में स्मार्ट आईडी कार्ड मुहैया कराने की कृष्णा ग्रुप ने मांग की. एमएस यूनिवर्सिटी में शैक्षिक वर्ष 2019-2020 का आगाज हो गया है, लेकिन अब तक छात्रों को स्मार्ट आई कार्ड मुहैया नहीं कराया गया है. पिछले वर्ष भी छात्रों को करीब साल पूरा होने आया तब स्मार्ट आई कार्ड दिया गया था, जिसके चलते कृष्णा ग्रुप ने इस वर्ष पहले ही रजिस्ट्रार को आवेदन देते हुए स्मार्ट आई कार्ड छात्रों को जल्द से जल्द मुहैया कराने की मांग की. डिजिटल यूनिवर्सिटी तरफ जई रही है त्यारे विद्यार्थीओने स्मार्ट आई कार्ड आपवानी वात हती, पण हजू सुधी यूनिवर्सिटी द्वारा विद्यार्थीओने स्मार्ट आई कार्ड आपवामां आव्या नता. अने गत वर्षे पण विद्यार्थीओने ज्यारे स्मार्ट आई कार्ड आपवामां आव्या हता त्यारे पण महीनो बाकी हतो, वर्षना अंते विद्यार्थीओने स्मार्ट आई कार्ड आपवामां आव्या हता. तो આજરોજ कृष्णा ग्रुप द्वारा वीसी सरने आवेदनपत्र आप्युं छे के विद्यार्थीओने स्मार्ट आई कार्ड आपवामां आवे, जो नहीं आपवामां आवे तो अंगे कृष्णा ग्रुप द्वारा उग्रमा उग्र आंदोलन करीशुं ने वीसी सरे अमने 1 महीनानो टाइम आप्यो छे. तो 1 महीनानी अंदर जो टाइमसर आई कार्ड नहीं आपवामां आवे तो अमे उग्रमा उग्र आंदोलन करीशुं. અને ફેકલ્ટી ડીન સાહેબ સાથે હું વાત કરીને એમને જે સ્માર્ટ આઈ કાર્ડની વાત કરી છે એ સંદર્ભે એમને આ વર્ષથી સ્માર્ટ કાર્ડ મળે એવું અમે આયોજન કરીએ છીએ. जीएसटी अमलीकरण के 2 वर्ष पूर्ण होने पर वडोदरा के जीएसटी विभाग के चीफ कमिश्नर अशोक मेहता ने जीएसटी पर वीएनएम टीवी से विशेष चर्चा की.
नमस्कार। आज 1 जुलाई और 1 जुलाई ये याद दिलाता है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा टैक्स में बदलाव आया था और वो था जीएसटी के बारे में आज हम बात करने के लिए हमारे वडोदरा शहर के जीएसटी भवन पहुंचे हैं और वहां चीफ कमिश्नर मिस्टर मेहता से मैं बात करूंगी कि जीएसटी 2 साल में क्या क्या इससे यानी जीएसटी लागू होने के बाद में 2 साल में लोगों के मन में जो चीज़ें थी, कुछ मिथ्स भी थे, कुछ डर था, वो सारी चीज़ें इस 2 साल में कहाँ तक पहुँची है। जीएसटी को 2 साल हुए, आपको लगता है कि अब ये टैक्स लोगों के बिल्कुल समझ में आ गया है, लोगों ने बहुत आसानी से इसे एक्सेप्ट कर लिया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि विश्व में अगर सबसे बड़ा कोई मेगा रिफॉर्म किसी भी इकॉनमी में, किसी भी इतने बड़े देश में अगर लागू किया गया है तो भारतवर्ष में था। बिल्कुल। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए एक ऐसी मिसाल है जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी 3 रूप के 3 एक्ट से गवर्न होने वाले लेजिस्लेशंस के साथ में इतने व्यापक स्तर पर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाते हुए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपनी लीडरशिप का एक ज़बरदस्त परिचय देते हुए देश को प्रोत्साहित किया इस जीएसटी रिफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए। ये 2 साल की जो जर्नी थी एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है, पूरे विश्व का एक मॉडल बन गया है जिसमें ये लोग समझते हैं कि आप इस देश की प्रगति के साथ जुड़ना चाहते हैं, देश में अगर आप प्रबंधन चाहते हैं टैक्स की प्रणाली का सरलीकरण करने के लिए, वो कैसे किया जा सकता है। किसी टैक्स रिफॉर्म को अगर आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसमें लोगों की परेशानियां आती हैं, इस 2 साल में उन परेशानियों को कैसे दूर किया गया। हर स्तर पर यदि टैक्स पेयर्स की कोई असुविधा हुई, अगर लगा कि रिटर्न्स जो हैं मुश्किल हैं तो उनको सरलीकरण किया गया, टैक्स रेट्स अगर ज़्यादा हैं उनको कम किया गया, छोटे व्यापारियों को दिक्कत आ रही है तो उनको दूर करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए। प्रत्येक जीएसटी काउंसिल में ये माइन्यूट से माइन्यूट तरीके के लिए ये प्रावधान किए गए कि टैक्स प्रणाली को समुचित रूप से लागू किया जाए, ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहित किया जाए और जो कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कर प्रवंचना अभी भी कर रहे हैं उनको किस प्रकार से उनको भी उस रास्ते पे लाया जाए ताकि वो ईमानदारी से टैक्स पे कर सकें। आपको लगता है कि टैक्स कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ा जिससे छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है और आज भी कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी नाराज नजर आ रहे हैं? जब हम टैक्स कंप्लायंस की कॉस्ट देखते हैं तो कॉस्ट टू नेशन देखा जाता है, क्योंकि जब हमने 14 टैक्सेस को इकट्ठा करके एमलगमेट करके एक सीजीएसटी बना दिया जी, 8 डिफरेंट स्टेट के टैक्सेस को एमलगमेट करके एक एसजीएसटी बना दिया, दोनों को जोड़ के एसजीएसटी जब मिला दिया तो जो लोग 14 या 15 तरह के टैक्सेस को अलग अलग तरह से वितरण करके अलग अलग लोगों को सीए को बिठाते हुए, अकाउंटेंट को बिठा के करते हुए, तो एक देश एक टैक्स एक मार्केट बनाने के तहत जो कार्य प्रणाली लगाई गई ये कहीं ज़्यादा प्रभावी रूप से, कहीं ज़्यादा इकोनॉमिकल है उन 14 टैक्सेस से जो सेंटर के थे या 8 टैक्सेस जो स्टेट के थे। और जहाँ तक रहा छोटे व्यापारियों के लिए, सरकार ने अपने टैक्स पेयर सर्विसेज के सेल के तहत उनमें एजुकेट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कमिश्नरेट के अंदर अपने ऑफिसर्स में डिप्यूट किया गया कि वो आएँ, अगर उनको समस्या आ रही है उनको बताएं। हमने ऑनलाइन सर्विसेज इंस्टॉल की, हमने एसएमएस सर्विस प्रोवाइड किया करने का जो सक्सेसफुल मिशन लगाया, उससे हमने देखा कि कंप्लायंस कॉस्ट कहीं ज़्यादा कम हुई है और नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स कहीं ज़्यादा हमारे कार्य प्रणाली में, हमारी टैक्स की प्रणाली में जुड़े हैं। 2 साल हो गए और 2 साल में जीएसटी को कहाँ देखते हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि जीएसटी इतनी सरलीकरण से इम्प्लीमेंट की जाएगी कि लोग जिस प्रकार से सुबह उठ के खाना खाते हैं, वॉक करने जाते हैं, इसी प्रकार से जैसे उन्होंने टैक्स पे करना है तो वो
उनको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। समस्या सिर्फ समझने में है। पहले सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं था। अच्छा। और लोगों को ज़्यादा अपनी जेब से पैसे देने पड़ते थे। अगर आपने 100 रुपए की चीज़ आपने ली, 10% टैक्स था, तो आपको 10 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला। अगर वो आपने 120 रुपए की बना के बेची तो 12 रुपए टैक्स लगा 10% में। जी। तो आपके जेब से तो केवल 2 रुपए ही गए। बिल्कुल। तो इस चीज़ को समझने के लिए व्यापारियों को थोड़ा सा समय लगा। तो लोग ये समझते हैं कि अगर हमें मान लीजिए कि पहले से 1/5 टैक्स पे करना पड़ रहा है, वो सहजता देश की तरक्की में भागीदार बनना पसंद करते हैं बजाय कि कर चोरी करें। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आखिर में लोगों को? मैं अपने जुरिस्डिक्शन के सभी टैक्स पेयर से, सभी निवासियों से ये कहूँगा कि भारत के विकास के भागीदार बने। बिल्कुल। आओ समय पर जीएसटी भरें। दांडिया बाजार में बरसाती कांस को जाली से ढक देने से जल जमाव जैसी स्थिति पेश आई। दांडिया बाजार इलाके के लकड़ी पुल पर 2 दिन पूर्व बरसाती कांस में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई थी, जिस पर फौरन कार्यवाही करते हुए वडोदरा महानगर पालिका ने जाली लगाकर कांस को ढक दिया था। लेकिन बीती रात हुई धुआंधार बारिश के दौरान जाली पर कचरा भर जाने से सारा पानी इलाके के घरों और कॉम्प्लेक्स में भर गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वार्ड प्रमुख नलिन पोथीवाला और अन्य निवासियों ने मिलकर जाली तोड़कर पानी निकासी का रास्ता बनाया। एमएस यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के सप्लीमेंट्री कांड के 12 छात्र आरोपी और एसिड अटैक मामले के 5 छात्र आरोपी समेत के 20 छात्रों को निर्णय नहीं आने तक यूनिवर्सिटी में प्रवेश से रोक लगा दी गई है। એમને પ્રવેશ નહીં આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે અને જ્યારે પ્રવેશ નહીં આપીએ તો નેચરલી એમની પાસે કોઈ પણ આઈ કાર્ડ નહીં હોય વિદ્યાર્થીઓ પાસે, અને આઈ કાર્ડ વગર કેમ્પસમાં પ્રવેશ કરવા દેવા નથી આવતા। બસ દેટ્સ ઇટ। એમની પર કોઈ કડક કાર્યવાહી થશે? કેમ કે હમણાં બી અમે સ્ટુડન્ટોને જોઈએ છીએ કે લોકો અંદર આવે છે તો નહીં, એ સિક્યોરિટીને કહી દીધું છે કે ભાઈ જેની પાસે આઈ કાર્ડ ન હોય એમને પ્રવેશવા દેવા નહીં કેમ્પસમાં, અને એમની સામે જે પણ કંઈ પગલાં હશે કમિટીનો ફાઇનલ રિપોર્ટ આવ્યા પછી નિર્ણય થશે। स्टेशन इलाके में सार्वजनिक परिवहन चलाने वाले रिक्शा चालकों की मनमानी के चलते शहर की छवि खराब हो रही है। शहर के स्टेशन इलाके में रिक्शा चलाने वाले रिक्शा चालक मनमानी करते होने की कई शिकायतें उठी हैं। कई रिक्शा चालक बिना लाइसेंस के और बिना यूनिफॉर्म के रिक्शा चलाते हैं। स्टेशन इलाके में जहां तहां रिक्शा पार्क कर ट्रैफिक की समस्या में इजाफा करते हैं। इन पर लगाम कसने की मांग वडोदरा महानगर पालिका के मेयर से की गई थी। इस मामले रिक्शा चालकों से पूछे जाने पर उन्होंने अपनी समस्या वीएनएम टीम को बताई। इन पर लगाम कसने की मांग वडोदरा महानगर पालिका की मेयर से की गई थी। इस मामले रिक्शा चालकों से पूछे जाने पर उन्होंने अपनी समस्या वीएनएम टीम को बताई। उनका कहना था कि कम पढ़े लिखे होने के चलते उनके पास रिक्शा चलाने का लाइसेंस नहीं है और ना ही उन्हें कोई ठोस जगह दी गई है जहां वह खड़े हो सके। आज जो यूनिफॉर्म लाइसेंस बेज जो ज़रूरी है वो सही बात है, पर आज जो पढ़े लिखे नहीं है, जो जिनको अपना घर चलाने का है, तो उनके लिए क्या? उनको सरकार से यही अपील है कि हमारे के जो भी धंधा करना चाहता है रिक्शा का, उनको लाइसेंस ऐसे ही दिया जाए जो अपना घर चला सके, अपने बीवी बच्चे पाल सके। और जो आज ये स्टेशन पे रिक्शा नहीं खड़ी रहेगी तो यहाँ पे क्या खड़ा रहेगा? पैसेंजर रात दिन आने जाने वाले होते हैं, जो ज़रूरी नहीं सब विटकोस में ही जाएंगे, जो लोगों को रिक्शा में भी जाने का होता है। तो स्टेशन पे तो रिक्शा खड़ी रहेगी। और जो भी लाइसेंस की समस्या है, ज़्यादा करके लाइसेंस की वजह से रिक्शा पकड़ी जाती है, रिटर्न होती है।
तो मैं सरकार से अपील करूँगा कि लाइसेंस सबको दिया जाए, जो भी रिक्शा धंधा करना चाहता है उनको लाइसेंस दिया जाए। રિક્ષાનું સ્ટેન્ડ છે નથી અમારા માટે, તો અમારે રિક્ષા સ્ટેન્ડની જરૂર છે, એટલે અમને રિક્ષા સ્ટેન્ડની જરૂરી છે, એટલે જગ્યા અને એ રસ્તો બતાડે કે આ રીતે જગ્યા કરે, અમે એક લાઇનમાં ઊભી રાખીને ધંધો કરીએ છીએ સાહેબ, બરાબર છે। અને આ માનસિક ત્રાસ છે પોલીસવાળાનો વધારે, કંઈ પોલીસવાળા હેરાન બી કરે અને અમે પોલીસવાળાને બી હેરાન કરીએ છીએ, એવું નથી હોતું કે એક જ હેરાન થાય છે, બધા જ હેરાન થાય છે। એટલે અમને કાયદેસર સ્ટેન્ડ એક આપે અને પેસેન્જર બી હેરાન થાય છે, રિક્ષાવાળા હેરાન થાય, પોલીસવાળા બી હેરાન થાય છે, બધા જ હેરાન થાય છે। એટલે અમને એક સ્ટેન્ડ આપે કાયદેસર। અને બીજું એક કે આમાં કોઈ જવાબદારી નહીં હોતી, જે અમને કોઈ સ્ટેન્ડ આપવા માટે કહે કે તમે જવાબદારી લો, અમારી પાસે કોઈ એવી કોઈ જવાબદારી નહીં, એટલે મહેરબાની કરીને અમને સ્ટેન્ડ આપે। અને લાઇસન્સ માટે ખાસ કરીને લાઇસન્સ માટે હું અપીલ કરું છું કે લાઇસન્સ ડ્રાઈવરોને અપાવે સરકારને। જે ટ્રાફિક નિયંત્રણ માટે જે ટ્રાફિક પોલીસવાળા હેરાનગતિ કરે છે એમની રીતે બરાબર છે, પરંતુ અમને પણ એક રિક્ષા ચાલક માટે અહીં ગોત્રી માટે સ્ટેન્ડ જોઈએ છે, જે વારંવાર રજૂઆત કરી છે અમે, પરંતુ એ લોકો જવાબદારી ને બાહેદારીઓ માંગે છે, તે કોઈ હોતી નથી। અને બીજું કે રિક્ષા ચાલકો માટે લાઇસન્સની જે પ્રક્રિયા છે કે 8 પાસ જોઈએ, 10 પાસ જોઈએ, એ નાબૂદ કરે, કારણ કે ઘર પરિવાર ચલાવવા માટે કોઈ બી કામ ધંધો કરવો જરૂરી હોય છે। તો સરકાર કે આરટીઓવાળા ગમે તે હળવો કાયદો બનાવે અને રિક્ષા ચાલકોને લાઇસન્સ મળી રહે અને સ્ટેન્ડ મળી રહે, તે માટે કંઈ અમારી અપીલ છે। सुभानपुरा के पंचरत्न बिल्डिंग के निवासी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। सुभानपुरा इलाके के पंचरत्न बिल्डिंग के निवासी कई समस्याओं से ग्रस्त है। यहाँ के लोगों को पिछले कई महीनों से सुचारू जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मामले की सूद लेने पहुंची वडोदरा महानगर पालिका की मेयर डॉक्टर जिगीषा सेठ का पिछले दिनों स्थानीयों ने घेराव भी किया था। बावजूद उसके समस्याएं नहीं सुलझने पर आज फिर एक बार निवासियों ने अपनी समस्या बयान करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आजवा रोड पर अमरदीप लैंडमार्क का गणमान्यों की उपस्थिति में आगाज किया गया। आजवा रोड पर अमरदीप लैंडमार्क नामक नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। अमरदीप लैंडमार्क के तहत 2 और 3 BHK फ्लैट्स तैयार किए जाएंगे, जिसका उद्घाटन सांसद रंजनमैन भट्ट और विधायक मनीषा वकील की उपस्थिति में महामंडलेश्वर महंत श्री निर्मलाबा के हाथों किया गया। इस मौके पर गणमान्यों ने बिल्डर किशोर प्रजापति और परेश प्रजापति को शुभकामनाएं दी। आजवा रोड पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृहनी सामे नगर गृहनी सामे अमरदीप एन्क्लेव साइटનું આજે ઉદ્ઘાટન પૂજ્ય બા નિર્મલાબાની ઉપસ્થિતિમાં સાથે આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય બેન મનીષાબેનની ઉપસ્થિતિમાં આજે આ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। આ અમરદીપ ગ્રુપ એવું છે કે એક ગ્રુપ આખું સમર્પિતતાથી વડોદરાના લોકોની સેવા કરે છે। હું આ ગ્રુપને ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને વડોદરાના નગરજનો અહીંયા ચોક્કસ આવે અને આ પોતાના જીવન એટલે પોતાના પરિવાર માટેનું કેવું સુંદર ઘર જોઈએ, એ ઘર આ અમરદીપ એન્ક્લેવમાં મળવાનું છે। ખૂબ સારા મજાના ફ્લેટ બનાવવા જઈ રહ્યા છે। સુવિધાસભર આ ફ્લેટનું આયોજન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે। આ વડોદરાવાસીઓને આમંત્રણ આપું છું અને અમર ગ્રુપને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। આજે અમરદીપ દ્વારા ખૂબ સરસ પ્રોજેક્ટ
વોર્ડ નંબર 5માં ન્યૂ વીઆઈપી રોડ પાસે રાખવામાં આવ્યો છે. આ જ વિસ્તારમાં સયાજીપુરા એરિયામાં ખૂબ મોટી મોટી સ્કીમ્સ આવી છે અને ડેવલપમેન્ટ જે રીતે વડોદરાનું થઈ રહ્યું છે એવી જ રીતે આ લોકો બધાનું બિલ્ડર્સનું કોન્ટ્રીબ્યુશન પણ છે કે કેવી રીતે એરિયા વધારે સુંદર લાગે. એટલે પાછળથી ડેવલપમેન્ટ થયું છે એરિયાનું પણ ખૂબ ઝડપથી થઈ રહ્યું છે અને ખૂબ વિકસિત થઈ રહ્યો છે. ત્યારે અહીંના વડોદરાના નિવાસીનો પણ નવું એક જગ્યા મળી છે જ્યાં એમનું ઘર બનાવી શકે અને ખૂબ સારા મકાનો કાયમ અમરદીપના સારા મકાનો એ લોકોને ઉપલબ્ધ થયેલા છે. તો અમે શુભેચ્છા પાઠવું છું અમરદીપ ગ્રુપને કે ખૂબ આગળ વધે અને ખૂબ સરસ એમને લોકોની સેવા કરવાની તક આપે. આજે આ અમરદીપ ગ્રુપ દ્વારા અમરદીપ લેન્ડમાર્કનું જે આજે ઓપનિંગ છે એને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને વિલાનાથ અને શ્રી રાઘવેન્દ્ર સરકારના આશીર્વાદ હંમેશા એમની ઉપર રહ્યા છે અને એ જ રીતે વરસતા રહે અને વડોદરામાં ગલી ગલીમાં અમરદીપનું નામ ગુંજતું રહે એવા ઠાકર પાસે આપણે આશીર્વાદ માંગીએ છીએ. વિલાનાથ આજરોજ આજવા રોડ ખાતે અમર ગ્રુપ દ્વારા અમરદીપ લેન્ડમાર્ક જે દીનદયાલ નગર ઉપાધ્યાય ટાઉન હોલની સામે આવેલું છે તેનું ઇનોગ્રેશન આજરોજ પરમ પૂજ્ય શ્રી નિર્મળાબા તેમજ રંજનબેન ભટ્ટ તેમજ મનીષાબેન વકીલ દ્વારા ઇનોગ્રેશન કરવામાં આવેલું છે. અહીંયા અમરદીપ લેન્ડમાર્કમાં અમારા તરફથી તમામ પ્રકારની પ્રાથમિક તેમજ આધુનિક સુવિધાઓ નું ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલી છે. તેમજ દરેક પ્રકાર 2 and 3 BHKના ફૂલ્લી એમ્યુનિટીઝવાળા ફ્લેટો અમારા તરફથી મૂકવામાં આવેલા છે. સુવિધામાં હોમ થિયેટર છે, કોમન એમ્યુનિટીઝમાં ક્લબ હાઉસ છે, ગેમ રૂમ છે, જિમ્નાશિયમ છે તેમજ સારા પ્રકારનું ક્વોલિટીનું બાંધકામ કરવામાં આવેલું છે. रचनम द्वारा रंगोत्सव का आयोजन कर शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति दी गई. रचनम परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा डांस के विभिन्न रंगों को रंगोत्सव के जरिए प्रस्तुत किया गया. महात्मा गांधीनगर गृह में आयोजित रंगोत्सव कार्यक्रम में शास्त्रीय नृत्य के विभिन्न रंग शास्त्रीय नृत्यांगना मानसी आचार्य पटेल द्वारा बिखेरे गए. अर्चनम परफॉर्मिंग आर्ट्स का एनुअल कॉन्सर्ट है रंगोत्सव 2019. रंगोत्सव इसलिए नाम दिया है क्योंकि जैसे अलग अलग रंग में मुख्य कलर में दूसरे रंग मिलके जैसे और दूसरे कलर्स बनते हैं वैसे हमारा मेन कलर है भरतनाट्यम का, क्लासिकल डांस का. तो उसमें दूसरे दूसरे जैसे ही रंग मिलते हैं दूसरे दूसरे जैसे प्रांत में जाते हैं तो राजस्थानी नृत्य आएगा तो हम चिरमी भी करने वाले हैं. फिर हमारा गुजरात का गरबा कैसे भूल सकते हैं तो हम टिप्पणी भी करने वाले हैं. फिर हम रास भी करने वाले हैं. और फिर आजकल वेस्टर्न कल्चर का बहुत क्रेज़ लगा है सबको तो हम हॉलीवुड डांस भी करने वाले हैं. और फिर बॉलीवुड को कैसे भूल सकते हैं तो बॉलीवुड सॉन्ग्स पे भी हम डांस करने वाले हैं. और हमारे यहाँ पे छोटे 3 साल के बच्चे से लेके इस मंच पर अभी 50 इयर्स की लेडीज़ तक सब साथ में डांस करने वाले हैं. जीएसटी अमलीकरण के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है. 1 जुलाई 2017 को देश भर में वन नेशन वन टैक्स के रूप में जीएसटी लाया गया था, जिसके बाद जीएसटी का काफी विरोध भी व्यापारियों की ओर से किया गया. लेकिन अब 2 वर्ष बीत गए हैं और जीएसटी की प्रक्रिया से व्यापारी और आम नागरिक काफी परिचित हो चुके हैं. जीएसटी अमलीकरण के 2 वर्ष पूर्ण होने पर शहर में विभिन्न जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं. पूरे सप्ताह चलने वाले इस जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत जीएसटी विभाग द्वारा वडोदरा के सेंटर स्क्वायर मॉल में जीएसटी पर नाटक का आयोजन किया गया और नाटक के जरिए लोगों को जीएसटी की सरल प्रक्रिया समझाई गई. नई कर प्रणाली के लागू होने के 2 सफल साल पूर्ण हुए हैं तो हमने जीएसटी दिवस और जीएसटी पूरा सप्ताह मनाने का इस बार निर्णय किया है. इसमें हमारा मुख्य प्रयास ये है कि हम जीएसटी के विषय में जागरूकता को फैलाएं. इसीलिए आज नुक्कड़ नाटक का संचालन हुआ. उसके बाद हम जीएसटी आपके द्वार स्कूल कॉलेजों में जाकर जीएसटी का अवेयरनेस और एक एफजीआई में हमने जीएसटी के प्रति करदाताओं की तरफ से एक फीडबैक सेशन भी रखा है.
मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोगों को समझाएं कि एक बहुत ही सरल कल्प प्रणाली है। लोगों की सहभागिता से हम इसको और सफल बनाएं और इससे अर्जित राजकोष को हम देश के विकास में लगाएं। तो जीएसटी दिवस पर देश के सभी करदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक, कवि और अभिनेता पीयूष मिश्रा का कार्यक्रम 6 जून को प्रस्तावित है। #डिकोड इवेंट कंपनी द्वारा बॉलीवुड के अभिनेता, गायक और कवि पीयूष मिश्रा की म्यूजिकल इवेंट 6 जुलाई को आयोजित की गई है, जिसमें पीयूष मिश्रा उनके बैंड बल्ली मारान के साथ परफॉर्म करेंगे। इस उपलक्ष्य में #डिकोड द्वारा शहर के 83 कवियों का ऑडिशन किया गया, जिसमें से टॉप 3 कवि पीयूष मिश्रा के साथ परफॉर्म करेंगे। इस आयोजन पर जानकारी दी #डिकोड की रुईना शेख ने। हमने ऐसा कुछ कंसेप्ट हम बड़ौदा के लिए कर पाए। इस इवेंट का नाम है सांझ एंड इवनिंग विद पीयूष मिश्रा, जहाँ पे पीयूष मिश्रा जी पहली बार शहर आएंगे हमारे और अपने बैंड के साथ परफॉर्म करेंगे, जो कि बाली मारन है। सो ये उनका फर्स्ट परफॉर्मेंस रहेगा शहर में। एक बहुत ही दिग्गज आर्टिस्ट है, उनके लिए हमने ये सोचा कि अगर वो शहर आ रहे हैं तो वो खाली नहीं जाना चाहिए, वो शहर जाए तो मुस्कुराते हुए जाए। उस वजह से हमने एक ऑडिशन प्लान किया था, जो कि है मिश्रा जी की सांझ का सितारा। आज 30 को हमारे टॉप 25 में से टॉप 5 सिलेक्ट होंगे और पीयूष मिश्रा जी टॉप 3 सिलेक्ट करेंगे। जो टॉप 3 परफॉर्म करेंगे पीयूष मिश्रा जी के शो के लिए, ओपन करेंगे वो शो, ठीक है। उसमें से जो हमारा टॉप विनर होगा वो इस तरह से सिलेक्ट होगा, जो कि ये भी पहली बार हो रहा है बड़ौदा में, कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स, जो हमारे ऑडियंस है, वो पहली बार लाइव वोटिंग करके विल सिलेक्ट अ विनर, जो कि हमारा मिश्रा जी की सांझ का सितारा होगा। फोरम फाउंडेशन द्वारा LGBTQ समुदाय के लोगों को समानता देने के प्रयास के भागरूप एक विशाल रैली निकाली गई। महिला और पुरुष के अलावा तीसरी जाति के लोगों ने रविवार की सुबह वडोदरा शहर में एक अनोखी रैली का आयोजन किया। फोरम फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस रैली में देश भर से आए 3rd जेंडर के लोग जुड़े। इन सभी ने डेरी डांस सर्कल से योग निकेतन तक रैली निकालकर समाज में जागरूकता फैलाई और महिला पुरुष की तरह तीसरी जाति के लोगों को भी स्वीकार करने का लोगों से अनुरोध किया। सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता मिल जाने के बावजूद भी तीसरे तबके के लोगों को समाज में सही स्थान नहीं मिल पाया है। उसी पर जागरूकता के भागरूप फोरम फाउंडेशन द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें शहर की कई संस्थाएं भी जुड़ी। ये कार्यक्रम जो है वो वडोदरा LGBTQ सम्मान यात्रा है, जिसमें हम लोग लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और पॉजिटिव लोगों का सम्मान के लिए हम लोग निकले हैं। 377 रेड डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी समाज में जो स्वीकार होना चाहिए वो स्वीकार नहीं है। तो समाज के लोगों के सामने आकर हम लोग अपील कर रहे हैं कि हम भी आप में से ही है, तो हमें अपनाया जाए ताकि हम भी अच्छा एजुकेशन ले सके, हम भी अच्छी जगह पर नौकरी कर सके और समुदाय खुलकर अपना इंटेलेक्चुअल दिखा सके। सुप्रीम कोर्ट ने जो मान्यता दी है, फिर भी समाज नहीं, क्योंकि समाज में जो रूढ़िचुस्ता है वो अभी भी कहीं ना कहीं मन के अंदर बैठी हुई है। तो जो एजुकेशन के थ्रू और हमारे लोगों के सामने आने से ही वो दूर हो सकती है, जिसके लिए सम्मान यात्रा है। एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड द्वारा अंध परिवार के बच्चों को प्रोत्साहित कर इनाम वितरित किए गए। बड़ोदरा के एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड द्वारा वैष्णवाचार्य द्वारकेश लाल जी महाराज की अध्यक्षता में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लाइंड परिवार के बच्चों को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और इनाम का वितरण किया गया। साजीगंज की होटल सूर्या में आयोजित इस कार्यक्रम में एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड द्वारा ब्लाइंड परिवार के छात्रों को शिक्षा में बढ़ावा देने हेतु ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज हमारे ब्लाइंड एसोसिएशन की ओर से ब्लाइंड फैमिलीज के जो बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी अपनी क्लास में पास करके और जो आगे की क्लास में गए हैं, उनका सम्मान समारोह आयोजित किया है। उन बच्चों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के द्वारा सम्मानित किया जाएगा और श्री राजीव भाटिया साहब हैं, उनके द्वारा राशन किट का वितरण किया जाएगा। अभी इस साल जो हमारी ब्लाइंड फैमिलीज हैं, उनके कुल 4 बच्चे पास हुए हैं। एक बच्चा इंजीनियरिंग में हुआ है और एक 12th में पास हुआ है, बाकी 2 छोटी क्लास के बच्चे हैं। जनमहल निकट जमीन धस जाने के बाद मरम्मत कार्य चालू करने से एक और की सड़क बंद कर दी गई है।
स्टेशन इलाके में स्मार्ट सिटी अंतर्गत जन महल प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले बारिश के चलते जन महल निकट की जमीन धंस गई थी, जिसकी मरम्मत के चलते एक और की सड़क बंद कर दी गई है। एक और की सड़क बंद कर दिए जाने से इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या पेश आ रही है। कारेली बाग की नागेश्वर सोसाइटी के लोग सोनिया नगर की झुग्गियों में रहने वाले लोगों से परेशान हैं। कारेली बाग में नागेश्वर सोसाइटी के पीछे सोनिया नगर है। सोनिया नगर में 70 से 80 झुग्गियां हैं। यहां के लोगों द्वारा न्यूसेंस फैलाया जाता होने की शिकायत लेकर नागेश्वर सोसाइटी के लोग म्युनिसिपल कमिश्नर के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सोनिया नगर के लोगों द्वारा असामाजिक कार्य किए जाते होने की शिकायत करते हुए उन्हें वहां से हटाने की मांग की। અમે રહીએ છીએ B43 નાગેશ્વર સોસાયટીમાં રહીએ છીએ, વોર્ડ નંબર 8માં। ત્યાં વર્ષો જૂનો પ્રોબ્લેમ છે સોનિયાનગર ઝૂંપડપટ્ટીનો। ગેરકાયદેસર બાંધકામ જ્યાં જ્યાંથી તૂટે છે ત્યાં ત્યાં વધતી રહે છે। બીજું કે ત્યાં ગેરકાયદેસર ભંગાર અને રાતે 9-10 વાગ્યા પછી જે ભંગારનો ધંધો કરનારા લોકો છે ને, ગમે ત્યાંથી શરાબ ગંદુ વ્યસન કરીને ત્યાં ગમે તેમ બેફામ બોલે છે, ગમે તેવું વર્તન કરે છે, સોસાયટીમાં મારવા દોડે છે। છોકરાઓને બહાર નીકળવું મુશ્કેલ થઈ ગયું છે। આ રજૂઆત 2014થી ચાલે છે। કમિશનરો બદલાઈ ગયા છે પણ કામગીરી હજુ બદલાઈ નથી। તમારું સ્પષ્ટ શું કહેવું છે? આ ઝૂંપડપટ્ટી હટાવવી, ઝૂંપડપટ્ટી હટાવવા માટે 2014થી અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ। 2016માં અમને એક લેટર બી આવ્યો સ્ટુડિયો ઓફિસમાંથી કે વરસાદ ચોમાસું સત્ર હોવાના ચાલુનો હોવાથી આ કામગીરી હમણાં નહીં થાય, પણ 2016થી સાહેબ આજે 2019 થઈ ગયું, હજુ સુધી એની ઉપર કોઈ નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું નથી। 2016માં તૈયારી કરેલી કે અમારે હટવાનું છે કરી, તો એ લોકોએ એમ નિમિત્તે સામાન સૌના સગાવાલાને ત્યાં મૂકી આવ્યા। પછી આપણે કોર્પોરેશનના સાથ ના આપતા હોય તો પછી કેમની હટે એ ઝૂંપડપટ્ટી? અને એ લોકોએ બધી તૈયારી કરી દીધેલી, તો પછી અમારે તો તકલીફ પડે ને અમને। અને બીજું કે દારૂ પીને પડી રહે ને પછી આપણે એમ કહીએ કે અહીં દારૂ પીને કેમ આવે, તો અમારા ગેટના ટોલાની અંદર માથું કૂટશે ને પછી બેભાન થઈને પડી રહેશે। લોકો કે મરી જશે તો તમારી જવાબદારી આવશે, આ પડી ગયો, આ પડી રહ્યો, આ પડી રહ્યો, એવું કર્યા કરે એમને। બીજું કે ગાળો તો એટલી તમે જુઓ તો એમ કે તમારા શું આવામાં શું રહેતા હશો, કોઈ સામું જ નહીં જોતું કોર્પોરેશનવાળા એમ કે આટલી સરસ જગ્યા એનો ઉપયોગ કોર્પોરેશનવાળા કેમ નહીં કરતા એમ કે, અને તમારું કેમ નહીં સ્વભરતા? અને આટલાટલું બોલમ ચાલી થાય અને પાછા રોડથી ઘરથી પાછા આગળ રોડ પર બેસીને એટલી ગંદી વાતો કરશે અને બોલીએ ને તો કે તમારા બાપનો રોડ છે। છોકરા એમના એટલા કે 15-20 છોકરા બધા રમે, આપણને એવું થાય કે ચલો છોકરા નાના એના પ્રત્યે આપણે શું રમે, તો જેવી તેવી વસ્તુ નાખે, બોલે રમે। મારી ગાડી જો તમારી ગાડીના કેટલી વાર કાચ તોડ નાખ્યા છે, અત્યારે ગાડીમાં બીજું નુકસાન થયું છે, તો તમારે ઝૂંપડા ઉપર થઈ ગયા છે। આજે મારો જે ઘરવાળો હતો ને આજે 1.5 વર્ષ પહેલા મરી ગયો છે, એની એટલી હાક હતી તો કોઈ ઝૂંપડું નહીં, અત્યારે એને ગયાના 1.5 વર્ષની અંદરમાં 25-30 ઝૂંપડા વધારી દીધા છે અને એટલું ગંદકી વધારી દીધી છે। અને એ ઝૂંપડું તમારા મ્યુનિસિપાલિટીમાં રાજેશ ગોહિલના નામે ઓળખાય જગ્યા, તો રાજેશ ગોહિલના નામે ઓળખાતી હોય તો થોડું તો કામ કરું છે ને રાજેશ। અને મારા સોફા ઉપર ઘરમાં બેવો ને એ સીધું તમને એ શું કરે છે ઝૂંપડાવાળા શું એ જ દેખાય। શું માંગણી છે તમારી? બીજું કઈ નહીં, એ લોકોને ઝૂંપડા હટી જાય, એમને વ્યવસ્થિત જગ્યા મળવા, એમને લોકો, અમે એવું નથી કહેતા કે ગરીબ લોકોને હેરાન કરો, એમને વ્યવસ્થિત જગ્યા મળી જાય, એ લોકો વ્યવસ્થિત જગ્યાએ જતા રહે અને અહીંથી હટી જાય ઝૂંપડા, બસ। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है और जनजीवन बेहाल है। आज सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश के बाद सायन, अंधेरी, कुर्ला, बांद्रा और चैम्बूर इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक मुंबई डिवीजन के पालघर इलाके में रविवार रात को मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान 361 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार चौथे दिन मूसलाधार बारिश से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बेहाल है। कहीं रोड पर घुटनों तक पानी है तो कहीं रेलवे स्टेशन पर जल भराव है। सड़कें तालाब में तब्दील होती दिख रही हैं।
स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और कामगारों को इस वजह से काफ़ी मुश्किल झेलनी पड़ रही है। शहर की लाइफलाइन लोकल के पहिए भी बारिश ने थाम दिए हैं। वहीं कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया है। पालघर में भारी बारिश के बाद ट्रैक पर पानी इकट्ठा हो गया, जिससे कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। फतेहपुरा के कुमारवाड़ा में गैस सिलेंडर में आग लगने से महिला झुलस गई। फतेहपुरा के कुम्हारवाड़ा में रहने वाली शांति प्रजापति के घर गैस लीकेज से आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। गैस सिलेंडर में आग से शांति प्रजापति झुलस गई। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। घायल महिला को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। आजवा रोड पर बरसात के चलते बड़ा सा गड्ढा हो गया है, जो स्थानियों की जान पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। मॉनसून का मौसम अभी शुरू ही हुआ है और शहर में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। आजवा रोड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम निकट ऐसा ही बड़ा गड्ढा हो गया है, जिससे स्थानीय दुर्घटना के डर से दहशत में हैं। स्मार्ट सिटी की बड़ी बड़ी बातें करने वाले वडोदरा महानगर पालिका के प्रबंधन द्वारा शहर में की गई गुणवत्ता विहीन कार्यवाही की पोल सड़क के यह गड्ढे खोल रहे हैं। અમારો અમરદીપ હોમ્સ છે, ચાચા નેहरू વાળો રસ્તો છે, જેને નજીકમાં દીનદયાલ પક્ષ હોલ આવેલો છે। એના પરમ દિવસે એક સહેજ એકદમ નાનો ખાડો હતો, તો હવે આજે તમે જોઈ શકો છો કેટલો મોટો ખાડો થઈ ગયો છે અને એની અંદર ઇલેક્ટ્રિકનો થાંભલો છે। હવે એ થાંભલો પડવાની તૈયારીમાં જ છે। હવે એ પડશે તો પૂરો કરંટ ત્યાં આવશે। તમે પંકજભાઈએ કમ્પ્લેન કરી છે, પણ હજુ સુધી કોઈ આવ્યું નથી અહીંયા આગળ। તો હવે એની જાનમાલનું નુકસાન થશે તો કોણ જવાબદાર છે? અને પંડિત દીનદયાલ સુધી ખાલી 200 મીટરનો રોડ બનાવી દીધો। હવે આ રોડ એપ્રુવ થઈ ગયેલો છે, છતાં પણ 1 વર્ષથી રોડ થતો નથી। અહીંયા રેસિડેન્સ એરિયા પણ છે। અમારા અહીંયા ટોટલ 271 મકાન છે અને સામે બી લગભગ 100 મકાનો છે। હાલ તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ બિસ્માર હાલતમાં છે। એમ કોઈ માણસ પણ જઈ ના શકે। ડ્રેનેજો ખુલ્લી છે, ત્યાં ડ્રેનેજ પણ લીકેજ થઈ રહી છે। ત્યારે વોટ લેવાનો હોય ત્યારે આવી અને બોલીને જતા રહે છે। એમ અત્યારે એટલું બધું ગંદકી છે કે ડ્રેનેજ લાઇન લીકેજ છે, એનાથી બીમારી ફેલાશે। પ્લસ કે જે ભૂવો પડ્યો છે અને વીજળીની લાઇન ચાલુ છે અને પડવાની તૈયારી જ છે। કોઈ રાતે યા મોડા વહેલા કોઈ જતું હોય અને કોઈને કરંટ લાગે કે ગાય છે, પશુ પક્ષી છે, એનાથી જે બી કંઈ પ્રોબ્લેમ થાય એની જવાબદારી સરકારની હોય, કોર્પોરેશનની હોય। એના માટે કોઈ આવતું નહીં, કંઈ નહીં। અને કેટલા સમયથી પાણીનું બી પ્રોબ્લેમ છે, પીવાનું પાણી બી નહીં આવતું અમારે। અને કેટલી વાર અમે કોર્પોરેશનમાં જઈને એની અરજી કરેલી છે, પણ કંઈ એનું નિકાલ આવ્યું નથી। पानीगेट के कुम्हारवाड़ा में खस्ताहाल मकान की दीवार धराशायी होने से अफरा तफरी देखी गई।
पानीगेट के कुम्हारवाड़ा में एक घर की दीवार धराशायी हो गई, जिसमें 3 लोग बाल बचे। दीवार गिरने से घर के निवासी भगवान कहार, उनकी पत्नी शकुंतला बहन और माता कलावती बहन मलबे में फंस गए, जिन्हें दमकल विभाग द्वारा बचाया गया। सवार में उठी एकदम बेही गई त्या बाजू मैं क्या मोटर लगाओ पानी नहीं तो पानी नहीं भरी ने एकदम पेलो दीवार पड़ी ने पेली दीवार ईटो त्या बाजू मैं बेही गई પછી મારી હાવને ધક્કો મારીને હટાવી પેલી બાજુ એમને ઉઠાડી મેં ત્યાં બાજુ ને પછી દમ પડ્યો સામાન બધું તમારા ઉપર બધું આવ્યું તો પગમાં વાગ્યું છે ને હાથમાં ખાલી વાગ્યું ફસાઈ ગઈ છે પછી પાછળની દિવાલ તોડીને કાઢ્યા પેલા આવ્યા ને શું કહે છે હા એ લોકો કાઢ્યા ઉચકીને। VNM न्यूज़ आप देख सकते हैं youtube.com/VNM न्यूज़ मीडिया पर या लॉग इन करें facebook.com/VNM न्यूज़ पर। न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। शहर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को लेकर VNM की टीम कल फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।